Hello students, welcome back. I hope you all are fine. Students, as you know that we are doing chapter 12 present continuous tense, and yesterday we discussed present continuous tense and exercise A of this chapter. Today we will do next exercises. Okay students, so let's start with exercise B. Change each of these sentences into negative and interrogative sentences. Students, here you have been given some sentences and you have to change these sentences into negative and interrogative sentences. And students, I have already told you the structure of negative and interrogative sentences, but again I tell you the structure of negative and interrogative sentence. For negative sentence, first subject, then we will put helping verb, then not, then verb first form में हम ing लगाएंगे, then object. And for interrogative sentences, first helping verb will come, then subject, then verb first form में हम ing लगाएंगे, then object. Okay students, let's start the exercise now. Here first sentence is the baby is having a bath, and you have to change this sentence into negative and interrogative sentence. First we will write into negative sentence, so we will write the baby is not having a bath. हम helping verb के बाद इसमें क्या लगाएंगे, not लगाएंगे. Okay students, after that in interrogative sentence हम क्या करेंगे, helping verb को starting में ले आएंगे. Is the baby having a bath? Then question mark, because it is interrogative sentence. Okay students, second sentence is Tanya is having breakfast. इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, तानिया इज़ नॉट हैविंग ब्रेकफास्ट. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, एंड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज़ तानिया हैविंग ब्रेकफास्ट, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सेंटेंस इज द बॉय was playing the guitar. In negative sentence, the boy was not playing the guitar, and in interrogative sentence, was the boy playing the guitar and question mark. मतलब नेगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा. नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस इज मानसी इज कॉमिंग हर हेयर. In negative sentence it would be Mansi is not combing her hair, and in interrogative sentence is Mansi combing her hair, then question mark. Fifth sentence, they are going home, वह घर जा रहे हैं. Negative sentence would be they are not going home, then full stop, and interrogative sentence would be are they going home, then question mark. Next, sixth sentence is Radha is mopping the floor. Negative sentence would be Radha is not mopping the floor, and interrogative sentence would be is Radha mopping the floor, then question mark. Okay students, seventh, the baby is sleeping. And negative sentence would be the baby is not sleeping. Baby नहीं सो रही है. And interrogative sentence would be is the baby sleeping, then question mark. Eighth sentence, she is writing a letter. So negative sentence would be she is not writing a letter, and interrogative sentence would be is she writing a letter, then question mark. Okay students, I hope this exercise is clear to you. Now see exercise D. Fill in the blanks with the correct form of the present tense, simple present or present continuous. Here students, some fill in the blanks have been given to you, and in the brackets you have been given verbs, and you have to fill the correct form of the verbs. That may be simple present or present continuous. And students, you have to keep in mind this thing that
The simple present tense is used to talk about routines, regular actions, facts and feelings. We have already discussed it कि simple present tense हम किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी रूटीन वर्क के लिए, रेगुलर एक्शंस जो बार बार होते हैं, कोई भी फैक्ट जो एक ट्रूथ होता है किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, एंड फीलिंग्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो कॉमन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं नॉर्मली, समटाइम्स, every day, always, etc. like that. And the present continuous tense is used to talk about actions that are in progress at the time of speaking. Present continuous tense का यूज़ कब किया जाता है, जब हम जो एक्शन हम बोल रहे हैं वो उसी टाइम हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं वो एक्शन तभी हो रहा है, इन प्रोग्रेस है, उस तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं. और इसमें जो कॉमन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं नाउ, एट द मोमेंट, एट्सेट्रा. Okay students, now start exercise C. First, I dash for my exams now. और इसमें ब्रैकेट में आपको वर्ब गिवन है स्टडी. अब हमने अभी डिस्कस किया था कि नाउ जो है किस में यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में. तो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स नाउ. आई सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, एम, एंड वर्ब में ing. स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडिंग फॉर माई एग्ज़ाम्स नाउ. सेकेंड, शी नेवर डैश ज्वेलरी, एंड वर्ब गिवन है आपको वेयर. सो यहाँ पर नेवर है, नेवर हम मतलब कि वहाँ कभी नहीं, उसकी हैबिट में ही नहीं है कि वो ज्वेलरी वेयर करें. तो हम यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी नेवर वेयर्स ज्वेलरी, बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पर शी है तो हम वहाँ यहाँ पर वर्ब में एस लगा देंगे, शी नेवर वेयर्स ज्वेलरी. थर्ड, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर यूजुअली डैश इन द आफ्टरनून. और यहाँ पर वर्ब आपको गिवन है रेस्ट. तो यहाँ पर हम यूजुअली यूज़ किया है, मतलब कि मोस्टली. तो यहाँ पर टू पर्सन्स हैं, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, दो जने हैं, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं. तो यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, रेस्ट का रेस्ट ही आएगा ब्लैंक में. ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर यूजुअली रेस्ट इन द आफ्टरनून. फोर्थ, आई डैश टू कॉल माई फ्रेंड बट देर इज़ नो आंसर, आई थिंक शी डैश. अब यहाँ पर आपको टू ब्लैंक से और टू वर्ब्स गिवन है. फर्स्ट वर्ब है आपकी ट्राई एंड सेकेंड वर्ब गिवन है आपको स्टडी. अब यहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब एम. आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फ्रेंड बट देर इज़ नो आंसर, आई थिंक शी इज़ स्टडिंग. यहाँ पर स्टडी में क्या लगाएगा, ing, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ होगी, इज़ स्टडिंग. आई एम ट्राइंग टू कॉल माई फ्रेंड बट देर इज़ नो आंसर, आई थिंक शी इज़ स्टडिंग. नेक्स्ट, फिफ्थ सेंटेंस, ही यूजुअली डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. और यहाँ पर वर्ब आपको गिवन है गो. अब यूजुअली मीन्स मतलब कि उसकी एक हैबिट, रूटीन वर्क हम की बात कर सकते हैं कि मोस्टली वो जो है मॉर्निंग में वॉक के लिए जाती हैं. अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही. तो यहाँ पर हम वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे, es. ही यूजुअली गोज़ फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग. ओके स्टूडेंट्स. सिक्स्थ, द ट्रेन डैश लेट, इट विल रीच दिल्ली एट 11 AM. अब यहाँ पर आपको वर्ब गिवन है रन. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द ट्रेन इज़ रनिंग लेट, इट विल रीच दिल्ली एट 11 AM. सेवंथ, द स्टेशन इज़ क्राउडेड, वी मस्ट बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेट्स, लुक दैट मैन डैश दैट वुमेन्स पर्स. कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है, हमें जो जेब मतलब कि पिक पॉकेट से जो जेब पॉकेट से सामान निकाल लेते हैं उनसे केयरफुल रहना चाहिए. वो देखो आदमी उस वुमन का पर्स स्नैच कर रहा है, मतलब जिस टाइम हम बोल रहे हैं वो एक्शन हो रहा है सामने. तो हम यहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो यहाँ पर स्नैच का क्या हो जाएगा, स्नैचिंग. और यहाँ पर दैट मैन मीन्स कि सिंगुलर पर्सन ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज़. दैट मैन इज़ स्नैचिंग दैट वुमेन्स
पर्स. 8th, Rohan is lazy. He dash sleeping. However, today he dash with his friends. अब यहाँ पर 2 blanks गिवन है और 2 verbs आपको गिवन है. फर्स्ट है लव एंड सेकेंड है प्ले. कि रोहन लेज़ी है. ही डैश स्लीपिंग, वो उसको मतलब कि उसकी आदत है कि उसको सोना जो है उसकी हैबिट पसंद है. ही लव्स स्लीपिंग. हाउएवर टुडे ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स. फर्स्ट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है, सेकेंड ब्लैंक में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, कि आज वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है. 9. I often dash my father's socks, but today I dash my own. अब यहाँ पर 2 blanks गिवन है और दोनों में ही आपको जो वर्ब गिवन है वो वेयर गिवन है. ऑफन का मतलब होता है अक्सर, मतलब कि ज़्यादातर मैं अपने फादर के सॉक्स पहनता हूँ. तो यहाँ पर हम आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. आई ऑफन वेयर माई फादर सॉक्स, बट लेकिन आज मैं, बट टुडे आई एम वेयरिंग माई ओन, लेकिन आज मैं अपने खुद के सॉक्स पहन रहा हूँ. 10. द सिक्योरिटी गार्ड डैश द कॉरिडोर लाइट्स ऑन एट 6 PM एवरी डे. अब यहाँ पर एवरी डे की बात हो रही है, मतलब कि रेगुलर वो एक्शन होता है. तो सिक्योरिटी गार्ड जो है यहाँ पर कॉरिडोर की लाइट 6 बजे स्टार्ट कर देता है हर रोज़. तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सिंगुलर पर्सन है, तो स्विच की जगह क्या आ जाएगा, स्विचेस, ES लग जाएगा. द सिक्योरिटी गार्ड स्विचेस द कॉरिडोर लाइट्स ऑन एट 6 PM एवरी डे. Okay students, I think exercise B, I hope exercise B and exercise C are clear to you. Now you have to revise these exercises also. Okay students, thank you, bye bye, take care.